عربک لینگویج کی کلاس میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے، خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے ڈوئر، جس کو ہم کہتے ہیں فاعل یعنی عمل کرنے والا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آبجیکٹ یعنی مفعول بہ، ان دونوں کی ڈوئل والی شکل یعنی ایسی شکل جو کہ تثنیہ کی حالت میں ہوتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلی کلاسوں میں پڑھ رکھا ہے کہ عربک لینگویج میں ایک واحد ہوتا ہے یعنی سنگولر، اور دوسرے ڈوئل یعنی تثنیہ ہوتا ہے، اور نمبر 3 پہ جمع یعنی پلورل ہوتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارا ڈوئر یعنی فاعل اور اسی کے ساتھ ساتھ مفعول بہ یعنی آبجیکٹ، اگر یہ دونوں ڈوئل بن رہے ہیں یعنی تثنیہ بن رہے ہیں تو اس کا اعراب کیا ہوگا، حالت نصبی میں کس طرح اس کا استعمال کیا جائے گا، حالت جری میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حالت رفعی میں کس طرح کا استعمال ہوگا۔ آج ان باریکیوں کو، اس کے بارے میں ہم لوگ آج کی کلاس میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ یہ کلاس آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ہمیں جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم تثنیہ کی اضافت کرتے ہیں، اس کو مضاف بناتے ہیں تو اس کا کیا اعراب آتا ہے، اور اسی کے ساتھ تثنیہ کا موصوف صفت میں کن کن باتوں کا اعتبار کرنا، لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انہی سب چیزوں کو آج ہم لوگ تفصیل کے ساتھ آج کی کلاس میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ تو ہم لوگ کلاس کی جانب چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سلائیڈ دکھ رہی ہے؟ دیکھیے، آپ لوگوں کا ٹیلی گرام چینل ہے، جو بھی کلاس آپ لوگوں کو لی جاتی ہے الحمدللہ پی پی ٹی کے ذریعے اس کی پی ڈی ایف ریویژن کے لیے آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو موٹیویشن کے طور پہ آپ اس کو لائک کر دیں۔ کوئی سجھاؤ ہے، کوئی کمنٹ ہے تو اس کو بھی کمنٹ باکس میں آپ لکھیے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، اپنے ریلیٹو میں شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اب ہم لوگ کلاس کی جانب چلتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو سلائیڈ میں دکھ رہا ہے کہ دا ڈوئل ایز ڈوئر اینڈ آبجیکٹ۔ ڈوئل کا مطلب مثنیٰ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تثنیہ۔ تثنیہ کس شکل میں؟ فاعل کے شکل میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کی شکل میں۔ آج ہم دیکھیں گے فاعل اور مفعول بہ دونوں اگر تثنیہ ہیں تو ان کا ناؤن کے طور پہ یعنی اسم کے طور پہ، جس کو آپ سنگھیا کہتے ہیں، ڈوئل آف جینیٹو، یعنی اگر تثنیہ ہے تو اس کی حالت جری کیا ہوگی، اور ڈیمونسٹریٹو یعنی اس میں اشارہ کے ساتھ کس طرح اس کا استعمال کیا جائے گا، آبجیکٹیول فریز یعنی موصوف صفت کے ساتھ کس طرح اس کا استعمال کیا جائے گا۔ اب ہم لوگ مثال کی جانب چلتے ہیں۔ مثال آپ دیکھیے، پہلی مثال لکھی ہوئی ہے، نجح التلمیذ۔ نجح التلمیذ، آپ کو معلوم ہے نجح کیا ہے؟ نجح آپ کا فعل ہے، التلمیذ آپ کا فاعل یعنی ڈوئر ہے۔ آپ کو یہ بات پہلے بھی معلوم ہے، جو فاعل ہوتا ہے وہ نومینیٹو کیس میں آتا ہے یعنی حالت رفعی میں آتا ہے۔ جب حالت رفعی میں آئے گا تو اگر وہ سنگولر ہوگا تو اس پر کیا آئے گا؟ اس پر ضمہ یعنی پیش آئے گا۔ جیسے نجح
अत्तिलमीज़ु, द प्यूपिल तालिब इल्म यानी स्टूडेंट यानी शागिर्द क्या हुआ, पास्ड। पास्ट का मतलब क्या हुआ, तालिब इल्म कामयाब हो गया। और आगे क्या है, नजहा अत्तिलमीज़ानी। अब देखिए अत्तिलमीज़ानी क्या है, आपका तस्निया है। आपने एक चीज़ पढ़ रखी है, तस्निया का एराब हालत रफ़ई में अलिफ और नून पे कसरा के साथ आता है। तो नजहा अत्तिलमीज़ानी, द टू प्यूपिल्स पास्ड, द टू प्यूपिल्स पास्ड यानी दो शागिर्द क्या हुए, कामयाब हो गए, पास हो गए। दूसरा हम देखते हैं मरीज़ा। मरीज़ा मतलब होता है बीमार होना। और इब्नु माजिदिन, इब्नु माजिदिन माजिद का बेटा, सिंगुलर है, हमने पढ़ रखा है सिंगुलर का एराब हालत रफ़ई में ज़म्मा आएगा। तो यहाँ मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले वाली किस्म है, तो एराब किस पर आएगा, मुज़ाफ़ पे आएगा। तो इब्नु पे एराब आ गया। मरीज़ा इब्नु माजिदिन, माजिद का लड़का बीमार है, बीमार हो गया। तो सन ऑफ माजिद, देखिए अब सन ऑफ लगा है ना, तो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग यहाँ आप दा लगाइएगा। द सन ऑफ माजिद, माजिद का बेटा, क्योंकि ऑफ पे से पहले जो इसम आता है, जो नाउन आता है, उमूमन उससे पहले क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। इसको इस तरह भी कह सकते थे, माजिद सन, माजिद के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस, उसके बाद सन लिख दें, ये भी 100% सही होता है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि निस्बत बयान करने के लिए इंग्लिश में अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो उससे पहले अक्सर क्या करते हैं हम, ऑफ वाली तरकीब नहीं बल्कि अपॉस्ट्रॉफी एस वाली यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो द सन ऑफ माजिद, माजिद का बेटा क्या हो गया, बिकेम इल यानी बीमार हो गया। क्लियर है। अब इधर आपके दाएं हाथ पे क्या है, मरीज़ा इब्ना माजिदिन, माजिद के दोनों बेटे बीमार हो गए। अब यहाँ हमें देखना है कि इब्ना असल में इब्नुन का तस्निया क्या आएगा, इब्नानी, इब्नानी। लेकिन जब हम तस्निया की इजाफत करेंगे यानी उसको मुज़ाफ बनाएंगे, उसके बाद वाले को मुज़ाफिले बनाएंगे, तो क्या होगा, नून एराबी साकित हो जाएगा और अलिफ को हम बाकी रखते हैं ताकि ये हमारा तस्निया की अलामत, तस्निया की जो साइन है, उसका जो संकेत है वो बाकी रहे। तो मरीज़ा इब्ना माजिदिन, टू सन्स ऑफ माजिद, माजिद के दोनों बेटे, इब्ना माजिदिन हो गया। क्या है, मरीज़ा यानी बिकेम इल यानी बीमार हो गए। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ हम तस्निया, इस टेबल में जितने भी फ़ाइल हैं वो तस्निया है। अब तस्निया हैं, आपको मालूम है अगर उसकी इजाफत करेंगे यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले वाली तरकीब होगी तो मुज़ाफ़ पे एराब आएगा, और निस्बत की शक्ल में यानी मुज़ाफ़ बनाने की शक्ल में अगर वो तस्निया है तो नून एराबी उसका साकित हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, गिर जाएगा। तीसरी मिसाल लेते हैं, हादल वलद, हादा क्या है, इसमें इशारा, वलद क्या है, मुशारुन इलै। आपको मालूम है इसमें इशारा का एराब क्या आता है, एक फिक्स होता है, हर हालत में हादा ही पढ़ा जाता है। तो हादा क्या हुआ, ये मबनी की एक किस्म है जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। हादा
الولد، تو مشارن الیہ پہ ہم اس اعراب کو ظاہر کریں گے کیونکہ فاعل ہے، حالت رفعی میں ہے، نومینیٹو کیس میں ہے، ھذا الولد، یضحک ھذا الولد، دس بوائے از لافنگ، اے لڑکا ہنس رہا ہے، اے لڑکا ہنس رہا ہے، یضحک، ضحکا یضحکو کے وزن پہ آتا ہے، سمع یسمعو کے باب سے آئے گا، ضحکا یضحکو معنی ہوتا ہے ہنسنا۔ اب اس کو ہم جب تثنیہ بنائیں گے یضحکو، اب اس میں اشارہ مشارن الیہ میں جینڈر میں، کس میں؟ جینڈر میں، یعنی میسکولن فیمینن میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نمبر میں یعنی واحد تثنیہ جمع میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ تو ولدانی جب ہم تثنیہ لے آئے تو ھذا کا بھی تثنیہ بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ھذانی، کیا بن جائے گا؟ ھذانی، یضحک ھذان الولدان، دیز ٹو بوائز، یہ دونوں لڑکے کیا ہیں؟ آر لافنگ، ہنس رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ اس سے پہلے والے میں مضاف مضاف الیہ تھا تو جب اضافت کریں گے تو نون اعرابی کو گرا دیا، یہاں اس میں اشارہ مشارن الیہ ہے تو اس میں اشارہ کو بھی تثنیہ بنائیں گے، مشارن الیہ کو بھی تثنیہ بنائیں گے، اور تثنیہ کی حالت رفعی کس کے ساتھ آتی ہے؟ الف اور نون پہ کسرے کے ساتھ۔ آگے مثال دیکھتے ہیں، قرأت، قرأ یقرأ، فتح یفتح کے وزن پہ ہے، قرأت واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ھذہ البنت، دس گرل یعنی یہ لڑکی، قرأ معنی ہوتا ہے ریڈ یعنی پڑھی، ریڈ ریڈ ریڈ، لیکن لکھا جاتا ہے تینوں میں ایک ہی طرح، قرأت ھذہ البنت، دس گرل ریڈ، اس لڑکی نے کیا کیا؟ پڑھا۔ اب اس کو ہم تثنیہ بنائیں گے، قرأت، بنتن کو کیا کہیں گے؟ بنتانی، بنتن کو کیا کہیں گے؟ بنتانی، قرأت ھاتانی البنتانی، ھذہ کو، ھذہ کا تثنیہ کیا آئے گا؟ ھاتانی، جس طرح ھذا کا ھذانی اور ھذہ کا ھاتانی۔ ھاتانی اس لیے آئے گا کیونکہ ہمیں تذکیر تانیث یعنی جینڈر میں مطابقت چاہیے، بنتن کیا ہے؟ مؤنث ہے، بنتانی مؤنث کا تثنیہ ہے، تو ہم کیا لائیں گے؟ ھاتانی ہی، ھذہ کا تثنیہ ھاتانی لائیں گے تاکہ مطابقت یعنی سملیرٹی، یکسانیت، ایک روپتا کیا رہے؟ باقی رہے۔ قرأت ھاتان البنتان، دیز ٹو گرلس ریڈ، ان دونوں لڑکیوں نے پڑھا۔ آپ نے دیکھ لیا اس میں اشارہ مشارن الیہ میں بھی مطابقت ہوگی، مضاف مضاف الیہ میں اس کو ساقط کر دیں گے نون اعرابی کو۔ آگے دیکھتے ہیں، قدیمہ، قدیمہ یقدم، سمع یسمع کے وزن پہ آتا ہے، معنی آنا، تشریف لانا، تو قدیمہ معنی کم، کیم کم مطلب آنا، ضیف جدید، نکرہ ہے، ضیف معنی ہوتا ہے گیسٹ، اور جدید مطلب ہوتا ہے نئے یعنی نئے مہمان، قدیم ضیف جدید، آ نیو گیسٹ، ایک نئے مہمان، کیم، ایک نئے مہمان آئے۔ اب یہاں ضیفن کیا ہے؟ موصوف ہے، اور جدیدن کیا ہے؟ اس کی صفت۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتا رکھا ہے کہ موصوف صفت میں چار چیزوں میں بیک وقت مطابقت پائی جاتی ہے، یعنی یکسانیت، ایک روپتا، سملیرٹی پائی جاتی ہے۔ تو کس میں پائی جائے گی؟ نمبر ایک، نمبر میں یعنی واحد تثنیہ جمع میں، نمبر دو، جینڈر میں یعنی مذکر و مؤنث میں، نمبر تین، ڈیفینٹ انڈیفینٹ میں یعنی معرفہ اور نکرہ میں، نمبر چار، کیس میں یعنی حالت اعراب میں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو دیکھیے دونوں ایک طرح ہیں موصوف صفت۔ انگلش میں ہم پہلے ایڈجیکٹو لاتے ہیں، اس کے بعد ناؤن لاتے ہیں۔ اے نیو گیسٹ کیم، آیا۔
اب ضعیفن کو جب ہم تثنیہ بنائیں گے، تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہی ہے الف اور نون کے ساتھ حالت رفعی میں، حالت نصبی اگلی ٹیبل میں دیکھیں گے۔ قدیمہ ضیفانی، ضیفانی کے مطابقت میں جدیدانی، ٹو نیو گیسٹ کیم آئے۔ آگے کیا ہے؟ یذہبو، ذہبا یذہبو، فتح یفتحو کے وزن پہ آتا ہے جانے کے لیے۔ یذہب السائح الاجنبی، دا فارن ٹورسٹ۔ السائح آپ نے دیکھا معرفہ ہے، اجنبی اس کی صفت ہے، دا فارن ٹورسٹ یذہب از گوئنگ، جا رہے ہیں۔ یذہب السائح الاجنبی، دا فارن ٹورسٹ از گوئنگ۔ اب اس کا تثنیہ بنائے، سائحو کا کیا بنے گا؟ سائحانی۔ یذہب السائحانی الاجنبیانی، دا ٹو فارن گرلز آر گوئنگ، دونوں فارن یعنی ودیشی یعنی باہری ملک کے، ٹورسٹ یعنی سیاح کیا ہیں؟ آر گوئنگ یعنی جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے ہم نے استعمال کیا۔ پہلے میں اس طرف جتنے ہیں سب واحد ہیں، اس کا تثنیہ بنا بنا کر کے آپ کو استعمال کرایا گیا۔ بس ایک چیز دیکھنا ہے، اضافت کی شکل میں نون اعرابی گر جاتا ہے۔ اب دوسرے ٹیبل کی جانب ہم لوگ چلتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ کتبہ، پہلے فعل ہے، کتبہ معنی لکھنا ہوتا ہے، پاسٹ ہے یعنی پرفیکٹ ورب ہے۔ عمارون، عمار کیا ہے؟ نیم ہے، کس کو لکھا؟ رسالتن یعنی ایک خط۔ عمار روٹ یعنی رائٹ، روٹ ریٹن آتا ہے، عمار روٹ رسالتن اے لیٹر، عمار نے ایک خط کو لکھا، عمار نے ایک خط لکھا۔ اب اس کو جب ہم لوگ اب تثنیہ بنائیں گے، کیا کریں گے؟ تثنیہ بنائیں گے۔ تثنیہ کے لیے کیا کہیں گے؟ کتبہ، کتبہ فعل ہو گیا، عمارun ڈوئر ہو گیا یعنی فاعل ہو گیا، کس کو لکھا؟ دو خط، تو کیا کہیں گے؟ رسالتینی۔ یہاں سے آپ کا تثنیہ کا اعراب نکل رہا، تثنیہ کے اعراب والی کلاس پہلے گزر چکی ہے۔ تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں الف نون پہ کسرہ، اور حالت نصبی اور حالت جری میں یا سے پہلے فتحہ، یا سے پہلے فتحہ، فتحہ کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، اگر یا سے پہلے کسرہ آ جائے گا تو جمع کا حالت نصبی اور حالت جری ہو جائے گی۔ اگر تثنیہ ہے تو یا سے پہلے فتحہ آئے گا اور نون پہ کسرہ۔ حالت رفعی میں بھی نون پہ کسرہ تھا اور حالت نصبی اور جری میں بھی نون پہ کسرہ ہی آئے گا۔ اگر یہی جمع ہے تو نون پہ فتحہ ہو جاتا ہے حالت نصبی اور جری میں، تو ہمیں ان دونوں میں التباس نہ ہو، مشابہت نہ لگے، اس چیز کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا۔ تو کتب عمار رسالتین، عمار روٹ 2 لیٹرز، عمار نے 2 خط لکھا۔ آگے کیا ہے؟ فتح، فتح یفتح، خود ہی باب فتح سے ہے، اس کا خود ایک باب ہے۔ فتح الفراش، فراش مطلب پیون یعنی جو جھاڑو اڑو لگاتے ہیں آفس میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیون۔ پیون، پیون کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ فراش۔ دا پیون اوپنڈ، فتح کھولا، کس کو کھولا؟ نافذۃ المکتب، نافذہ کیا ہے؟ مضاف، اور المکتب کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ ہم نے پڑھ رکھا ہے مضاف پہ الف لام نہیں آتا، مضاف پہ تنوین نہیں آتی، تو نافذہ تا آگے کیا ہے؟ المکتب، مکتب کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ فتح الفراش نافذۃ المکتب، یعنی دا پیون اوپنڈ، پیون نے کھولا، کیا کھولا؟ دا ونڈو آف دا آفس، آفس یعنی جو دفتر ہے، کاریالے ہے، دفتر کی کھڑکی کو کھولا۔
अब यहाँ हालत जो मफ़ऊल है इसको हम तस्निया बनाएंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, देखिए फ़तहा हो गया, अल-फ़र्राशु फ़ाइल हो गया, नाफ़िज़तई, नाफ़िज़तैनी था, क्या था, नाफ़िज़तैनी, नून को गिरा दिया, लेकिन हम या को बाकी रखे, या को बाकी इसलिए रखे ताकि ये तस्निया पर दलालत करे। अगर उसको भी हज़फ कर देंगे तो हम पता ही नहीं पाएंगे कि तस्निया था कि नहीं था। तो फ़तहा अल-फ़र्राशु, फ़र्राश यानी पियोन ने खोला, क्या खोला, नाफ़िज़तई अल-मक्तबी, द टू विंडोज़ ऑफ द ऑफिस, ऑफिस की दोनों विंडो को ओपन किया, खोला। फ़तहा अल-फ़र्राशु नाफ़िज़तई अल-मक्तब, यानी दोनों, यानी पियोन ने ऑफिस की दोनों विंडो को खोला। आगे चलते हैं, तीसरा कहा क्या है, यक़तउ, क़तआ यक़तउ माने होता है किसी चीज़ की कटिंग करना, छाटना, यानी उसका कलम करना। जैसे दरख्त को छांटा जाता है ताकि उसकी नई टहनी निकल करके आए। यक़तउ अल-बुस्तानिय्यु, बुस्तानिय्यु माने होता है माली, द गार्डनर, गार्डनर क्या कर रहा है, यक़तउ इस कटिंग, काट रहा है, किसको, हाज़िही शजरता, हाज़िही क्या है, इसमें इशारा है, इसमें इशारा का एक ख़ास एराब आता है, हर हालत में हाज़िही ही लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। अश-शजरता को शजरता हम फ़तहे के साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हालत नसबी में है, मफ़ऊल बिही वाक़े हो रहा है। यक़तउ अल-बुस्तानिय्यु हाज़िही शजरता, द गार्डनर इज़ कटिंग दिस ट्री, गार्डनर क्या कर रहा है, इस पेड़ को काट रहा है। यक़तउ अल-बुस्तानिय्यु हाज़िही शजरता, द गार्डनर इज़ कटिंग दिस ट्री। अब इसी को हाज़िही शजरा ये मफ़ऊल बिही है, इसको अगर हम तस्निया बनाएंगे तो किस तरह लिखेंगे, देखिए उसके सामने, यक़तउ अल-बुस्तानिय्यु, द गार्डनर इज़ कटिंग, गार्डनर काट रहा है, किसको काट रहा है, हाज़ैनिल, हातैनी शजरतैनी, हाज़िही का तस्निया हातैनी, हातानी आता है, और जब हालत नसबी जर्री होगा हातैनी होगा। जैसे हाज़िही का, हाज़ा का हाज़ानी, और हालत नसबी जर्री में हाज़ैनी, और हाज़िही का हातानी, हालत नसबी और जर्री में क्या आएगा, हातैनी। यक़तउल बुस्तानिय्यु हातैनी शजरतैनी, हातैनी अश-शजरतैनी, द गार्डनर इज़ कटिंग दीज टू ट्रीज़, बुस्तानी काट रहा किसको, इन दोनों दरख्तों को। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ज़रबल मुअल्लिमु, मुअल्लिम यानी उस्ताद, द टीचर, ज़रबा यज़रिबु, माने क्या होता है, पीटना, मारना, किसको, हाज़ल वलदा, हाज़ा क्या है, इसमें इशारा, वलदा मुशारुन इलैह क्या है, मफ़ऊल बिही है। अब इसको तस्निया किस तरह बनाएंगे, ज़रबल मुअल्लिमु, हाज़ा को हाज़ैनी, जिस तरह हाज़िही को हातैनी पढ़े थे, हाज़ैनिल वलदैनी, द टीचर बीट, बीट माने पीटना, दीज टू बॉयज़, इन दोनों लड़कों को टीचर ने पीटा यानी मारा। आपने देखा हाज़ैनी वलदैनी, दोनों को तस्निया लाए हैं। आगे देखिए, क़राअतु मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा, मजल्लतन अरबियतन, एक अरबिक मजल्ला यानी मैगज़ीन। अब मजल्लतन अरबियतन मफ़ऊल बिही है, इसको तस्निया बनाए तो क्या होगा, मजल्लतैनी अरबियतैनी, यानी क़राअतु मजल्लतैनी अरबियतैनी, आई रीड टू अरबिक मैगज़ीन्स। मजल्लतानी था, जब तस्निया बने, जब हालत नस्बी जर्री में होगा मजल्लतैनी हो गया। क़राअतु मजल्लतैनी अरबियतैनी, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब आगे चलते हैं। फ़हिमतु, फ़हिमा यफ़हमु, समिया यस्मऊ के वज़न पर किसी चीज़ को समझना। फ़हिमतु अद-दर्सल जदीदा, आई अंडरस्टूड, यानी मैं
समझा, किसको समझा? द न्यू लेसन, किसको समझा? द न्यू लेसन। अदरसल जदीदा क्या है? मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत में मुताबकत मैंने बताया 4 चीज़ों में पाया जाना कंपलसरी है, ज़रूरी है, लाजिम है। फ़हिम्तु अद्दरसैनी, आई अंडरस्टूड द टू न्यू लेसन्स अद्दरसैनी अल जदीदैनी, आई अंडरस्टूड द टू न्यू लेसन्स। फ़हिम्तु अद्दरसैनी अल जदीदैनी, आई अंडरस्टूड द टू न्यू लेसन्स। हमने 2 नए सबक को समझा। तो दरसुन का दरसानी था, हालत नस्बी जर्री में दरसैनी आएगा। उम्मीद है कि दोनों टेबल में, पहले में हमने क्या देखा? फ़ाइल सिंगुलर में किस तरह होगा, फिर उसको तस्निया में किस तरह से पढ़ेंगे, तस्निया में किन किन चीज़ों का एतबार किया जाएगा, अगर तस्निया मुज़ाफ़ होगा तो नून एराबी किस तरह गिरता है, हम अलिफ़ को बाकी रखते हैं। इसी तरह हमने मफ़ऊल बिही को देखा कि उसको जब हम तस्निया बनाएंगे तो किस तरह उसका एराब आएगा, यानी या से पहले फ़तहा नून पे कसरा के साथ। अगर उसकी हम इजाफ़त करेंगे तो नून गिर जाएगा, या को बाकी रखते हैं ताकि तस्निया की अलामत बाकी रहे। अब हम चलते हैं, जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमने सीखा है, अब इसका एनालाइज करते हैं। क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, इसका तहलील करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, किन किन चीज़ों को इसमें हमें जहन में रखना ज़रूरी है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, आपको मालूम है 3 चीज़ होते हैं संज्ञा इसमें के, एक है वाहिद, एक है तस्निया, एक है जमा। एराब की 3 किस्में हैं, ज़म्मा यानी पेश, फ़तहा यानी ज़बर, कसरा और ज़ेर। अब यही अगर तस्निया है तो इसका अलग एराब आएगा, अगर जमा है तो अलग एराब आएगा। तस्निया का जमा आपने पढ़ा है अलिफ और नून पे कसरे के साथ। अगर तस्निया होगा तो क्या बनेगा? या तो फ़ाइल होगा, हालत रफ़ई क्या होगी? नोमिनेटिव केस में फ़ाइल बनेगा, या क्या बनेगा? मुब्तदा बनेगा, या क्या बनेगा? ख़बर बनेगा। और हालत नसबी और जर्री में किसके साथ एराब आएगा? या और नून पे कसरे के साथ। हमने अभी टेबल में सब देखा है। और हालत नसबी जर्री कब बनेगी? या तो मफ़ूल बिही हो, मफ़ूल बिही हालत नसबी में आता है, जर्री यानी मजरूर हो, उससे पहले हर्फ जार आए, या मुज़ाफ़ इलैहि हो यानी उससे पहले मुज़ाफ़ आए। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। मैंने दोनों टेबल में अच्छे से आप लोगों को समझाया है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बाद में आप रिवीज़न के तौर पे पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, जो कुछ अभी मिसाल में गुज़रा है उसी का एनालाइज़ करते हैं। आपने देखा था तिलमीज़ु गुज़रा था, ठीक है। तिलमीज़ु क्या है? सिंगुलर है, इसलिए उस पर ज़म्मा का एराब आया। और इसी के साथ साथ अगर इसको हम तस्निया बनाएंगे तो तिलमीज़ानी हो जाएगा। अब हम फ़ाइल मुरक्कब इज़ाफ़ी, जैसे इब्नु माजिदिन था, आपने देखा टेबल में 2 तरफ था, एक तरफ सिंगुलर, दूसरी तरफ आपके दाएं हाथ की तरफ क्या था? तस्निया था। तो पहले में क्या था? तिलमीज़ु का था, दूसरे में क्या था? इब्नु माजिदिन था, और उधर जो है इब्ना माजिदिन यानी तस्निया का इस्तेमाल था। वही चीज़ इसमें बताया जा रहा है, इब्नु माजिदिन था। आपको मालूम है एराब किस पे आएगा? जब फ़ाइल है तो मुज़ाफ़ पे आएगा, मुज़ाफ़ इलैहि कसरा ही होता है। और अगली मिसालों में क्या था? मुरक्कब इशारी यानी एक इसमें इशारा, दूसरा मुशारुन इलैहि। मुरक्कब वसफ़ी यानी एक मौसूफ, दूसरी सिफत, जैसे हाज़ल वलदु क्या है? इसमें इशारा, मुशारुन इलैहि। ज़ैफ़ुन जदीदुन क्या है? मौसूफ सिफत।
अस्साइहु अल अजनबिय्यु क्या है? मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत में मुताबकत पाई जाती है, जिस तरह पहले पे एराब आएगा उसी तरह दूसरे पर भी एराब आएगा। ये दोनों फ़ाइल हैं तो हालत रफ़ई में बाकी हैं, यही चीज़ बताई गई। अगली है, अब दूसरे में बताया जा रहा है, एक तरफ हमने देखा था सिंगुलर, दूसरी तरफ उसका क्या था? डुअल था, यानी तस्निया था। तो वही तस्निया की बात बताई जा रही है। तो तिलमीज़ुन का तस्निया क्या बनेगा? तिलमीज़ानी, अलिफ और नून पे कसरे के साथ। आपको मालूम है फ़ाइल का एराब हालत रफ़ई में तस्निया के एराब अलिफ और नून के कसरे के साथ आता है, और अगर वही इजाफ़त कर दी जाए तो नून एराबी गिर जाएगा। जैसे इब्नानी माजिद था तो इब्ना माजिद हो गया, वही चीज़ कही जा रही है। क्योंकि हम अलिफ को बाकी रखते हैं ताकि कम से कम नोमिनेटिव केस यानी हालत रफ़ई की अलामत बाकी रहे। आगे चलते हैं। आगे वही जो मिसाल थी, हाज़ानिल वलदानी, मालूम है क्या है ये? इसमें इशारा मुशारुन इलैह में मुताबकत होती है, तो इसमें इशारा तस्निया, मुशारुन इलैह भी तस्निया, अलिफ और नून के साथ क्योंकि हालत रफ़ई में है। और हाज़िही का हातानी आता है तो हातानी अलबिनतानी पढ़ा जाएगा। सब गुज़र चुका है, अभी मैंने सब बताया है। मुरक्कब वसफ़ी में जदीदुन का जदीदानी, ज़ैफ़ुन का ज़ैफ़ानी, अस्साइहानी अल अजनबी यानी साइहुन अजनबीजुन था तो तस्निया क्या होगा? अस्साइहानी अल अजनबी यानी, क्योंकि मौसूफ सिफत में मुताबकत पाई जाती है। तो इसका एराब किसके साथ आता है? हालत रफ़ई में तस्निया का अलिफ और नून पे कसरा। नून पे क्या आएगा? कसरा। वही चीज़ बताई जा रही है। अब आगे हम देखेंगे दूसरे वाले बी वाला जो टेबल था, जिसमें क्या था? पहले मफ़ूल बिही सिंगुलर था, उसके बाद मफ़ूल बिही तस्निया की शक्ल में किस तरह यूज़ हुआ उसको बताया गया था। उसी का एनालाइज़ करेंगे। रिसालतैनी किसका तस्निया है? रिसालतुन का। जब ये हालत नस्बी में आएगा तो रिसालतैनी यानी या से पहले फ़तहा नून पे कसरा। क्यों? क्योंकि मफ़ूल बिही है। मफ़ूल बिही का इराब क्या आता है? या और नून पे कसरे के साथ। जैसे नाफिज़तैनी, दो विंडो, किसका तस्निया है? नाफिज़तुन का है। और मुरक्कब इज़ाफ़ी किस तौर पे? मुरक्कब इज़ाफ़ी के तौर पे यूज़ हुआ है। ऐसा क्या है? मफ़ूल बिही। तो मफ़ूल बिही अगर है तो क्या होगा? हालत नस्बी होगी। हालत नस्बी में तस्निया के इराब या और नून पे कसरे के साथ ही आता है। और अगर मुज़ाफ़ होगा तो क्या करेंगे? नून को साकित कर देंगे और या बाकी रहेगी। या इसलिए बाकी रहेगी ताकि डुअल का एक्यूजेटिव केस यानी उसका जो हालत नस्बी के केस की अलामत है, एक्यूजेटिव और जेनेटिव दोनों के केस की अलामत क्या है? या को बाकी रखते हैं ताकि तस्निया पे दलालत करे। अब आगे हम वही सब जो मिसालों में देखे हैं। मुरक्कब इशारी है, हाज़िही का हातानी, और हालत नस्बी जर्री में हातैनी अश्शजरतैनी। हाज़ा का हाज़ानी, हालत नस्बी जर्री में हाज़ैनी, हाज़ैनिल वलदैनी, मफ़ूल बिही है। इसमें इशारा मुशारुन इलैह आपको मालूम है या और नून पे कसरे के साथ आएगा। इसी के साथ मुरक्कब वसफ़ी अरबियतैनी मजल्लतैनी अरबियतैनी और दरसैनी अल जदीदैनी, क्योंकि मफ़ूल बिही है और मौसूफ सिफत में मुताबकत चार चीज़ों में पाई जाती है, इसलिए दोनों का इराब किसके साथ होगा? या से पहले फ़तहा और नून पे कसरे के साथ। अब जो कुछ हमने सीखा आज की क्लास में, क्या सीखा? हमारा फ़ाइल यानी डुअर और मफ़ूल बिही दोनों तस्निया में हालत किस तरह इस्तेमाल होगा, किस तरह उसका एराब आएगा। अब इसी पे हम लोग एक्सरसाइज कर लें ताकि जो कुछ हमने सीखा है वो पूरी तरह हमारे जहन में बैठ जाए, उसको हम ग्राफ्स कर लें, अपने अंदर बैठा लें, ताकि इस तरह का जुमला बनाना, इस तरह का सेंटेंस बनाना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तो देखिए क्लास लंबी हो जाती है तो इसकी एक्सरसाइज मैं करता हूँ, आप लोग दोबारा
PDF ले करके इसको खुद कीजिएगा, ना समझ में आए तब उससे देखिएगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए जब आप लोग करके सीखेंगे। क्योंकि 100% लर्निंग उसी वक्त होगी जब लर्निंग बाय डूइंग होगी, यानी कर कर के सीखेंगे। टीचर क्या होता है? एज ए फैसिलिटेटर होता है, एज ए गाइडेंस करने वाला होता है। टीचर का रोल बस यही है। आप जब खुद करके सीखेंगे तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब देखते हैं, एक्सरसाइज हल करते हैं। क़बज़ा अश्शुर्तियानी अला सारिक़, क्या है? 2 पुलिस। द 2 पुलिस मैन, क़बज़ा यानी पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो क्या कहेंगे? कैच काट काट। देखिए कैच काट काट नहीं, यहाँ अरेस्ट लाते हैं। अरेस्टेड यानी गिरफ्तार कर लिया। कैच का मतलब कोई चीज़ हाथ में पकड़ लेना। किसको पकड़ा? चोर को। जी। यलअबुल वलदान बिकुरतिल क़दमी, यानी 2 लड़के किससे खेल रहे हैं? फुटबॉल से। तो क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लाते हैं। इंग्लिश का कायदा है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। द 2 बॉयज़ क्या कर रहे हैं? यलअबु, खेल रहे हैं। तो क्या है? इस प्लेइंग। आपको मालूम है मुजारे में कॉन्टिन्यूअस का भी सेंस पाया जाता है। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। फुटबॉल। तदरुसु उख्ता खालिदिन फिल मदरसा इब्तदाइया, यहाँ क्या था? उख्तानी था। जब हम इजाफत किए तो नून एराबी गिर गया, तो उख्ता। अब देखिए अलिफ को बाकी रखा ताकि तस्निया पे दलालत करे। खालिद की दोनों बहनें, तो क्या हम कहेंगे? खालिद 2 सिस्टर। उख्त तदरुसु, पढ़ती हैं, स्टडी। देखिए दरअसल यदरुसु माने कभी स्टडी आता है और कभी रीड आता है। अगर कोई किताब वगैरह रहेगी तो वहाँ पर हम रीड इस्तेमाल करते हैं। इस बारीकी को आप लोग समझ लीजिए। अगर कहीं बुक वगैरह है, कोई कॉपी है, कोई चीज़ मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं? रीड। और अगर सिर्फ क्लास में पढ़ना, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, 4वीं में, 5वीं में, 6ठी में, तो उसके लिए क्या करते हैं? स्टडी का यूज़ करते हैं। स्टडी पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है? फिल मदरसा अल इब्तदाइया। इब्तदाइया का मतलब प्राइमरी स्कूल। इन द प्राइमरी स्कूल। ज़उफ़त आइना हाज़िहिल मरअ अल मुसिन्ना, यानी ये जो बूढ़ी औरत है इसकी दोनों आँखें क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। द आइज़ देखिए बगल में मस्जिद है तो इसलिए अज़ान की आवाज़ आती है। अब क्योंकि मेरा जो फ्लैट है मस्जिद से मिला हुआ माशाल्लाह, तो क्लास में पूरी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं, आवाज़ थोड़ा आप लोगों को सुनाई देगी। द आइज़ ऑफ दिस ओल्ड ओमेन, यानी आईना आइज ऑफ हाज़िही, दीज नहीं दिस आएगा, दिस ओल्ड ओमैन, इस बूढ़ी औरत की दोनों आँखें क्या हो गईं? कमज़ोर हो गईं। तो क्या कहेंगे? वीकेंड।
यामलु ज़ानिकर रजुलानी फ़ी मसनई, दोनों आदमी किस में काम करते हैं? फैक्ट्री में काम करते हैं। ज़ालिका का तस्निया ज़ानिका आता है, तो क्या कहेंगे? दीस, दीस नहीं दोस, क्योंकि ज़ालिका किसके लिए आता है? दूर के लिए आता है। दोस टू मेन दोनों आदमी काम करते हैं, क्या करते हैं? वर्क। कहाँ काम करते हैं? फी मसनाइन, एक फैक्ट्री में। इन आ, चलिए दूसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसमें इंग्लिश में दिया है, उसको हमें अरबी बनाना है, एराब भी लगाना है। चलिए, द टू शर्ट बिकेम डर्टी, यानी दो कमीज क्या हो गई? गंदी हो गई। तो क्या कहेंगे? वसीखा। वसीखा माने हुआ गंदा होना। अल कमीसानी, अल कमी तो बना दिया, स्वाद होगा, अल कमीसानी। तस्निया है, हालत रफ़ई में अलिफ नून के साथ एराब आ गया। टू टीचर्स एंटर द क्लासरूम, दो उस्ताद क्लासरूम में यानी क्लास में क्या हुए? दाखिल हुए। तो क्या कहेंगे? दाखला। आपको मालूम है अगर फ़ाइल सामने हो तो हम सिंगुलर ही फ़ेल यूज़ करते हैं। दाखला अल मुअल्लिमानी, क्योंकि फ़ाइल है। कहाँ दाखिल हुए? फिल फसली। हमीद टू सिस्टर, हमीद की दोनों बहन क्या हैं? लिव रहती हैं। कहाँ? इन दिस सिटी, इस शहर में। तो हम क्या कहेंगे? तस्कुनु। तस्कुनु उख्ता, निस्बत आएगी तो नून गिर जाएगा, उख्ता नहीं था, उख्ता। क्या? हमीद, हमीदिन। इन दिस सिटी, फी हादिहिल मदीना। जी। द टू सर्वेंट्स ऑफ खालिद, खालिद के दोनों नौकर कैरीड द लगेज, यानी लगेज को क्या किया? उठाया, अपने ऊपर रखा। तो कैरी के लिए हमला यहमिलु यूज़ करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हमला। खालिद के दो सर्वेंट, सर्वेंट के लिए क्या लफ्ज़ होते हैं? खादिमुन, खादिमानी था, खादिमा, नून को गिरा दिया। उसके बाद क्या ले आएंगे? खालिद। खालिद के दोनों नौकर क्या उठाया? द लगेज। लगेज के लिए मताउन जमा अमतिआतुन ले आते हैं, अल अमतिआता। आगे क्या है? दीज टू गेस्ट विल स्टे इन दैट रूम, ये दोनों मेहमान ठहरेंगे कहाँ? उस रूम में। तो क्या कहेंगे? ठहरने के लिए मकासा यमकुसु यूज़ कर लेंगे, यमकुसु। दीज टू गेस्ट, तो क्या कहेंगे? हादा का हादानी, हादानी अज़्ज़ैफ़ानी। इन डैट रूम, फी डैट है तो ज़ालिका के अलावा तिलका आएगा, क्योंकि हुजरतुन है। तिलकल हुजरत। समझ में आ गया? आगे चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे। इसमें क्या है? इसमें आपका अरबिक में है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और इसमें हम ज़हन किस पे देंगे? मफ़ऊल बिही पे।
जो हमने पढ़ रखा है। दफ़ातु रुबियतैन लिसाहिबि दुक्कानी, आई पेड यानी अदा किया, PAID पे पेड, क्योंकि ये पास्ट है। मैंने अदा किया, क्या अदा किया? 2 रुपया, 2 रुपीज़, 2 रुपया मैंने अदा किया, किसको? टू साहिब दुकानी मतलब शॉपकीपर। गसलना यदैनी वर्रिजलैनी, हमने दोनों हाथ और दोनों पैर धुले। गसला यगसिलु माने धोना, वी वाश्ड, हमने धुला क्या? 2 हैंड्स एंड फूट का जमा फीट, पैर को धुला। गरसत ज़ैनब शजरतई अल अंबज, हालत नसबी में है, शजरतैनी था, शजरतई हो गया। गरस यगरिसु माने किसी चीज़ को, पौधे को लगाना, तो उसके लिए प्लांट आता है। ज़ैनब ज़ैनब ने क्या किया? लगाया, तो क्या कहेंगे? प्लांटेड। क्या लगाया? शजरत अंबज यानी आम के 2 दरख्त, तो द 2 ट्री ऑफ मैंगो। आगे क्या है? अखज़ल हम्मालु हकीबतई अल मुसाफिर, कुली ने मुसाफिर के दोनों बैग को ले लिया, यानी उठा लिया। टेक टुक माने लेना, तो क्या कहेंगे? कुली के लिए इंग्लिश में कौन सा लफ्ज़ यूज़ करते हैं, बताएं आप लोग? पोर्टर। उठाया, टेक टुक। हकीबतई मुसाफिर, द ट्रेवेलर्स टू बैग्स। अक़राती हातैनिल मजल्लतैनी, क्या तुमने इन दोनों मजल्ले यानी मैगज़ीन को पढ़ा है? तो क्या कहेंगे? डिड यू, देखो यहाँ मजल्ला है तो स्टडी नहीं यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? रीड, रीड। हातैनी दीज 2 मैगज़ीन्स। हाल ये आएगा क्या? आपका सवालिया जुमला। अब आगे क्या है आपका? इंग्लिश में है, अरबी में बनाना है, एराब के साथ लिखना है। चलिए, दे ब्रोक 2 चेयर्स एंड टेबल्स, 2 चेयर और टेबल को तोड़ दिया, किनको? डुअल मैस्कुलिन ने, तो क्या कहेंगे? कस्सरा युकस्सिरु माने तोड़ देना, तो कस्सरा तस्निया है, क्या तोड़ दिया? कुर्सीजुन, कुर्सीजुन, कुर्सी यैनी, कुर्सी यैनी, 2 कुर्सी तोड़ दिया। और क्या तोड़ा? टेबल्स। व ताविला तैनी, दूसरा क्या है? वी नो द 2 मेन एंड लेडीज़, हम 2 आदमी और 2 औरतों को जानते हैं। जानने के लिए आरफ़ा यारिफु यूज़ करते हैं, तो ना आरिफु। 2 मेन अर्रजुलैनी, तस्निया, व अलमरअतैनी, तैनी। जी,
Did you cut the 2 branches of this tree? सवाल कर रहे हैं। हल कता यक्तौ माने होता है हल डुअल मैस्कुलिन, अच्छा डुअल है तो कता तुमा, क्या तुम दोनों ने काट दिया? किसको काट दिया? गुस्नुन गुस्नानी गुस्नई, गुस्नई कहेंगे, गुस्नई, गुस्नई हाज़िही शजरा, इस दरख्त की दोनों टहनियों को। सवालिया जुमला, यहाँ भी सवालिया ही लगेगा। She wounded her 2 hands in an accident, यानी एक एक्सीडेंट में उसको दोनों हाथ क्या हो गए? ज़ख्मी हो गए। तो क्या कहेंगे? असाबत यदुन यदानी, यदुन यदा हा, या दा यदानी था, यदा हा, उसके दोनों हाथ क्या हो गए? यदा हा फी हा दिसतिन। वोंडेड माने ज़ख्मी हो जाना। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। बस अब आज की क्लास में इतना ही। हम लोगों ने क्या आज की क्लास में सीखा? तस्निया क्या हो, फ़ाइल अगर तस्निया बने या मफ़ूल बिही तस्निया बने तो उसको किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से उसका एराब आएगा, हालत रफ़ई में क्या होगा, हालत नस्बी जर्री में किस तरह से यूज़ करेंगे, जुमला किस तरह बनाएंगे, सारी चीज़ें हमने आज के क्लास में सीख लिया। चलते चलते ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आखिरी स्लाइड में जो दिख रही है कि ये आपका यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और जाने से पहले क्लास को लाइक करके जाएं। कोई कमेंट है सुझाव भी दें और शेयर भी कर दें। अब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस आज के क्लास में इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।